Very good morning, my dear viewers. Those who are from those who are from Mithila, straddling India Nepal border, or whoever Mithils inhabiting across the world, you all would just reckon with the fact that this is Vivekananda, an author, academician, and a public intellectual. Of course, the author of the Living Legends of Mithila Part 1. And of course, I've written multiple books, the bestseller books like Yes, I Am Bihari, The Making of Narendra Modi, Unmaking of Jawaharlal, The Living Legends of Mithila, and so scores of books. My dear viewers, this is the part 1, which I wrote in the year 2017, and it got launched in the myriad places. Now I have already kick-started the journey of writing the second series of the Living Legends of Mithila. And consequently, I am very much here in Janakpur Dham. That is, you all would know, the citadel of Mithila. And here I have had the privilege of portraying few people, few individuals. As I began my journey, I am here at Haribans Babu's residence. And I began this particular innings of writing the Living Legends of Mithila Part 2 with portrayal of Dr. Sri Haribans Babu. And then I have had the privilege of portraying Mahantji, that is the head of Janaki Dham, Mandir temple here in Janakpur Dham. He is a very, very renowned saint. And today I do have another privilege of portraying a very young, dynamic youth, that is Sri Bikram Yadavji, who despite even having not attained the age of 40, just barely of 38 years old, but my God, nevertheless the sort of work, the monumental work that he has done was simply amazing. When I came across the load of work that he has done in India, I thought that possibly he might be 50 or above. But lo and behold, when I came in touch with this young man, I really, it came to me as a ball from blue. I was taken in by a huge surprise because he has devoted his entire life on Kamala River. And Kamala River is a lifeline of Mithila along with Kosi. And Sri Bikram Yadavji has, his entire life is dedicated towards the altruistic mission of Kamala River. So I am just, going to portray Sri Bikram Yadav today for, as a third legend from Nepal, from the Mithila community in Nepal, and consequently I am just going to engage Bikramji for a very short conversation because I would like to elicit his response to few questions, because it is really amazing. I am reiterating or rather duplicating my observation that it came to me as a ball from blue, because the work that he has done is indeed stupendous. So I am just engaging Bikramji. Yeah, of course in Maithili, because Bikramji is a Maithili speaker, and of course it would be befitting for me to engage him in a conversation in Maithili. Bikramji हमरा अपने के बारे में इंडिया में पता चला जो बहुत अपने काज के लिए कमला नदी पर, तो बहुत जे अपने के जिंदगी के जीवन के बारे में किछु शब्द कहे, तो अपने बचपन केना शुरू भेल कतऽ से भेल, तकर बाद कमला नदी पर अपने के बहुत विशाल ज्ञान यऽ, मगर वीडियो बहुत शॉर्ट है, तो किछु मेन जे मूलभूत बात कहे अपने अपन परिचय दियो हमरा दर्शक बिंद का। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद हमारे सबके बीच में श्री विवेकानंद झा जी जे भारत से आबि कऽ अते प्रकार जे मिथिला पर जे हुनकर बुक सबके देख कऽ बड़ा अद्भुत लागल, जे अद्भुत पुरुष है हमारे सबके बीच में। सबसे पहले अपना ही के हम बहुत बहुत धन्यवाद देबऽ चाहब और आभार व्यक्त करै छी। वास्तव में हम सब जे मिथिलावासी छी और गर्व होइए जे हम सब मिथिला के छी, और मिथिला में गर्व जब बात से करै छी तो सबसे पहले हम सब एक पहले से पूर्वजे से जे कमला बिमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम जे ई उक्ति है जे प्राते हमरा सबके पूर्वजे से जे ई उक्ति प्राते काल जे कहैत आबि रहल अछि। तो एहि मिथिला भूमि में मिथिलांचल में जे कमला नदी के जे बात करी तो मिथिला के जीवन रेखा जीवनदायिनी नदी के रूप में जे कमला जी के मानल गेल छै, और कमला जी 328 किलोमीटर में बहि रहल छै, जे मध्य नेपाल में
2 से 24 किलोमीटर और भारत में 1 से 4 किलोमीटर जे कोई तरफ आके जे नदी निरंतर बह रहा है मिथिला के जे बीच के पार्ट तक विभिन्न नदी के सब नदी के अपन अपन महत्व है, लेकिन हम सब कमले क्या और कमला क्या हमारे बचवटा पड़ते क्या बचवटा पड़ते तो कमला एक संस्कृति है, कमला एक जीवन जीव के तरीका है, कमला एक जीवनदायिनी माँ है, कमला प्रकृति है। ताहि दुआरे कमला के हमरा सबके बचबटा पड़ते, कमला के बचनाई के मतलब हम सब अपना बचबो के लिए ई काज कर रहे हैं। ताहि दुआरे हम सब सबसे पहले कमला के विषय में हमरा कहल जाता हमर नाम भेले विक्रम यादव, घर हमर संजोग से कमले किनार की कमला नगर पालिका के म्यूनिसिपलिटी कमला नगर पालिका वार्ड नंबर 2 में घर पड़े हम जनकपुर जी, जनकपुर से 20 किलोमीटर पूर्व जी जे जन्म स्थान से जी वही घर पड़े। तो कमला हम सब पहले से जानी छे, पहले से बुझे छे, बचपने से जन्म के ठार भेलिए तखिनते से कमला 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 जानी छे। अब कमला है अब क्या है कथी छे कमला के संस्कृति की छे तो पहले हमारा सबके मिथिलांचल में बाढ़ और सुखाड़ के विगते से जे ई अवस्था छे जे कभी बाढ़ कभी सुखाड़, लेकिन कमला माँ है जीवनदायिनी है से प्रमाणित हमारा सबके पूर्वजे कर चुकी है। ताहि दुआरे जे कहलक जे कमला माई साक्षात लक्ष्मी माता है और ओकर प्रमाण अहाँके हमरा सबके पुरानो दऽ रहल छै। लक्ष्मी ह पद्मल्या पद्मा कमले विष्णु वल्लभी, विष्णु के पत्नी से संबोधित माता कमला छथिन। और माता कमला के जल जे मिट्टी पर पड़े छै उ मिट्टी से सोना पैदा होइ छै। उ मिथिलांचल में एगो कथन छै जे जे कमला के जल पड़ते वो ये सब सोना पैदा होइ छै। कहा के मतलब उर्वरा शक्ति जे मिट्टी के अते बढ़बै छै कमला के पानी जे अहाँके ओकर कहल जाए जे उत्पादन के लिए जे मिथिलांचल क्षेत्र में जे बहुत एगो भारी मात्रा में एगो माने रखे छै। तो ये क्षेत्र में कतौ न कतौ पिछले वर्ष हम देख रहा छी जे जहाँ न्यून भ रहा है उत्पादन न्यून भ रहा है, कमला कहाँ छे वो पता नहीं लोग के भ रहा है और कमला के जल के सेहो महसूस नहीं भ रहा है। जबकि हम सब के संस्कृति हमारा सबके छै कमला के नदी जे छै जो माँ है ओकर भौगोलिक स्वरूप के हम सब देव नदी के रूप में मानी छी और हुनकर जल के चरणामृत के रूप में हम सब पूजा आजा करै छी, या घर में पूजा हो या बाहर हो या जब विभिन्न ठाव में पूजा आजा के लिए ल जाए मिथिलांचल से। और कमला माता दसो विद्या के देवी छथिन। कमला माता में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जे दसो विद्या के देवी होने के नाते कि कार्तिक पूर्णिमा में विशेष करके जे लाखों मात्रे नहीं करोड़ों कहल जाए कमला के उद्गम स्थल नेपाल के सिंधली जिला महाभारत पर्वत से निकल कर और भारत के बीपी मंडल तक कि जे क्षेत्र देखल जाए उसके कोनो क्षेत्र आगे खाली नहीं रहे, पूरे पैक रहे। मतलब विभिन्न क्षेत्र के लोग और आके कमला स्नान केला से घर के देवता के रिझबो के लिए संपन्नता के लिए विभिन्न कोबला रहे लोग के तै के लिए और अपनो स्थान कर पवित्र होबो के लिए जे कमला के किनारे में अवश्य स्नान कर लगे। तो कमला अति महत्वपूर्ण नदी है, लेकिन फिर हम सब छोड़े छी क्या काल कमला नहीं रहती तो मिथिला के मान शान जी घटते मतलब कि एहने रहते ई अवस्था पर आबि गेल छै। तो एहि तगार पर आबि गेल छै जे कमला के जे ऊपर के जे स्टीम छै जे अप स्टीम ऊपर के भाग छै जे वो खास करके महाभारत रेंज जब चूरे पहाड़ जे शिवालिंग पहाड़ जकरा कहै छै जे अपने आप में चूर छै, कोमल मिट्टी छै, अति भूछे होइ छै। वही अहाँके एक तो वही के समस्या है, वही के प्रभाव है जे जंगल में जाकर मानव के बस्ती हम सब बैठा देली। जखिन थे तो हमारे जल संरक्षण के बात कहै छी जल ही जीवन है, जल नहीं रहते तो कल नहीं रहते ई बात करै छी, लेकिन हमारा सबके कमला अब बाँचे के अवस्था में न है। क्या कि जो चूरे रेंज है जो महाभारत रेंज है ओहि पर अहाँके अवैध उत्खनन सेहो भऽ रहल छै, अहाँके वो जंगल समाप्त सेहो भऽ रहल छै। तो ई अवस्था के केना के रोकल जाए, केना के न्यूनीकरण कल जाए, तै के लिए अवेयरनेस सबसे पहले का काम हमरा सबके रहले। कमला के किनारे में कमला के तट में हम सब इवरी गाँव इवरी सैटरडे के हम सब पुगलिए और कमला किनार के गांव के वासी सबसे हमारे बातचीत सबसे पहले के लिए हरेक गांव में जे कमला एक एगो विषय रहे कमला अभिशाप की वरदान, कमला अभिशाप से कि वरदान से विषय पर इंटरेक्शन भेला के बाद में हमारा सबके बहुत चीज अल गाँव से जे वास्तव में ये हम सब प्रमाणित करी कमला जी अभिशाप नहीं भ सके, कमला जी अहाँ के वरदान से।
ई वरदान सब जगह नहीं मिलते, खोजलो से नहीं मिलते। ई मिथिले भूमि है जे ई भूमि पर कमला जी के आगमन भेल से आ वो कली के कलुक नाश करे के लिए कमला जी आयल। बहुत बढ़िया। वह अपने जे छै से क्या क्या साल से कमला नदी के सेवा, माँ के सेवा कर रहे छियै, और कखन केना के अपने के इंटरेस्ट, अहाँ के इंटरेस्ट जागल जे कमला नदी के और कमला माँ के प्रति एते भावना कखन अहाँ के पैदा भेल? देखिए दोस्तों, हमरा केना अहाँ के भावना पैदा के बाद जे भेलै तो हम अहाँ के गाँव सब कमला से उठ कर हम सब अहाँ के जनकपुर धाम अयलहुँ। जनकपुर धाम के बाद हमरा सबके एकटा राजनीतिक हिसाब से कहल जाए या सामाजिक हिसाब से कहल जाए, आदरणीय जे नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति, गणतंत्र नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर रामवरण यादव जी बनला। हुनका बनला के बाद में हुनकर जे लड़का छे डॉक्टर चंद्रमोहन यादव जे अपने के अभी संविधान सभा सदस्य MP रहे और अभी प्रत्याशी उम्मीदवार है और नेपाली कांग्रेस के अभी केंद्रीय सदस्य स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सेहो है। तो डॉक्टर साहब से हमरा बहुत घनिष्ठ संबंध, राष्ट्रपति जी से, राष्ट्रपति जी के उनका लड़का से चंद्रमोहन जी, डॉक्टर चंद्रमोहन यादव मान्य जी से जी हम आगे उनका साथ में जे डॉक्टर चंद्रमोहन यादव के साथ में हम आगे काम कब पैली जे मोटा मोटी कहल जाए जे 6-7 वर्ष के अनुभव उनका साथे साथे संगे में रहनाई, संगे में खानाई, संगे में सुतनाई, एक एक फ्लाइट में रहनाई उनके साथे। तो उनका साथे हमारे जे संहित भेल तो वही समय में सामान्य राष्ट्रपति जी के विजन एगो अल जे तराई मधेश चूरे विकास समिति जे खोलल जाए, जे चूरे नहीं रहते या ई शिवालिंग पहाड़ नहीं रहते तो ई मधेश भूमि, मिथिला भूमि ई सब बंजर हो जाए। एहि तरह से जो हुनकर विजन अल तो हुनकर विजन पर तत्कालीन जे कहल जाए जे नेपाल सरकार के पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल के संयोजकत्व में एक समिति बनायल गेल जे काम करे वाला लोग उस समय में रहे। उनका टाइम में विजय सिंह रहे, नागेंद्र यादव रहे, और उस समय में जो वन विज्ञ है जे चूरे विज्ञ एहन लोग और के उस समिति में राखल गए उस समय में, और कुछ काम आगे बढ़। लेकिन सब राजनीति के खेल है। राजनीतिक भेला के बाद में आगे सामान्य राष्ट्रपति जी के अवधि समापन भेला के बाद में आगे वही राजनीतिक हिसाब से फिर दोसर राष्ट्रपति अपना चॉइस से मंत्री कैबिनेट से हो उनकर तो एक सिफारिश सपोर्ट, लेकिन होते से कैबिनेट तो कैबिनेट के राजनीतिक लागला एक कारण से राजनीतिक व्यक्ति और प्रवेश भेल में और वो चूरे विकास समिति कहाँ पुगल जर अखनी तक उपलब्धि जनता के माझ में कुछ नहीं बुझा रहा है, पैसा खर्च भ रहा है, लेकिन ओकर विजन के कतौ न कतौ अभी जे ओहि हिसाब से नहीं भ रहा है। लेकिन तो हमरा ई आयल जे सामान्य जी के हम नजीक में उनका लड़का साथे रही कर सामान्य जी के नजीक में सेहो हमरा जान आन रहल। तो सामान्य जी के विजन के हम एक सोच गेली जे हमर सामान्य जी के घर भेले सफी, उनकर जन्मस्थल क्षेत्र भेले उनकर 4 नंबर क्षेत्र, हमर क्षेत्र भेले अभी के 2 नंबर, तहिया के तत्कालीन 1 नंबर क्षेत्र, हमर सबके घर भेले कमला किनार में। तो कमला तट के वासी जते चूरे एरिया है, चूरे के प्रभाव के चूरे विकास के बात अभी है, चूरे विनाश हो तो नदी नाला आगे चूरे सब होते निकल, सब नदी तो चूरे होते निकलते, एक बाद तराई रेंज में सब नदी के अवस्था आगे गंभीर होती है दिन प्रतिदिन और नदी नहीं पचती। तो हम ई मिशन के लिए लीजिए मिथिला के महत्वपूर्ण जो ये नदी है कमला, और कमला के तट में हमार सौभाग्य जे हमर वो जन्म भेल और वो हमर घर भेल, ताहि दुआरे हम अपना ठाव में हम माँ कमला की कुछ सेवा कर पाबी कि हुनकर हम एक पुत्र के रूप में स्थापित हम अपन कर्तव्य हम करी कि स्थापित भर एक सांगठनिक रूप एक दी, ते तहत हमार एक बात है। तो वही में हम कुछ साथी सबके जनकपुरे में बोले, ते में आगे ये जनकपुर के पत्रकार, जनकपुरे धाम से मानवाधिकार कर्मी, जनकपुरे धाम से शिक्षक, विभिन्न सेक्टर में लागल बुद्धिजीवी सबके एक हम भेला के लिए छोड़ सबके आश्चर्य लगल उस समय सारा के आश्चर्य लगे जे कमला बचाओ अभियान कह कमला केना के तू बचेबो अथवा कमला केना बचते, अजीब बात है कमला के हम सब केना बचबो सकबे। मतलब सबके तखनी में कुछ लोग मजाकों में ले के, कुछ लोग नहीं एक तो बचपटा पड़ते अगर कमला नहीं रहते तो हम सब वास्तव में नहीं रहते। मानव सभ्यता के विकास नदी नाला के किनार से भेल छै, सबको यहाँ प्रमाणित कर दीजिए। हमारा सबके सनातन कह रहा है जे नदी नाला वृक्ष ई सारा जते छै जे सब पूजनीय छै,
कतौ नहीं कतौ सब हमरा सबके संस्कृति में ओकरा पूजा करबे तो वो हमरे सबके जीवन देबऽ के लेल आयल छै। ताहि तहत हम सब अहाँके संगठित भऽ कऽ जे हमरा संयोजकत्व में एगो समिति बनलै और समिति वॉलेंटियर एवरी सैटरडे जे कमला किनार में जाइए कमला लोग से संवाद करे। नहीं तो ई अहाँ जे छै कमला बचाओ कमिटी किछु बनेने छी ना? जी जी। तबरे मोटा मोटी क्या साल से अहाँ कमला के प्रति ये विगत 7 वर्ष ई एकदम निरंतर चल रहा है। ये विजन पहले तो आयला के बाद में कुछ दिन हमरा सबके होमवर्क अपन अपन केना कल जाए की कल जाए में केना राखल जाए कथी कल जाए कत क्षेत्र केहन केहन 7 साल में कमला छोड़ का दूसरा कोनो काज। जी जी जी। अच्छा विक्रम जी, अब अहाँ के डॉक्टर राजेंद्र सिंह से चर्चा में कहलो जहाँ कोनो संपर्क अछि डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी के साथ केना जुड़ल छी या कोन ऑर्गेनाइजेशन के आज नेपाल के हेड करै छी? जी जी एना छै जे हमरा सबके जे कमला मिशन के जे शुरुआत के डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी का जल पुरुष के उपाधि देल गेल छै ना, उनका नोबेल के वाटर के जो नोबेल अवार्ड है छै से डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी के प्राप्त छै कहियो? जी तो अपना ही के की छै हुनकर जे हम सब जे कमला बचाओ आंदोलन से शुरुआत के लिए शुरुआती समय में जे एगो अहाँ के एक गोष्ठी जे भारत के दिल्ली में जे रहल तो वही में विभिन्न सेक्टर से विभिन्न ठाव से जे बोलायल जाए आदमी और के एहन बातचीत भेल। तो वही में हमरा की भेल जे एक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार के एक पटना से छै जो नीम पीपल तुलसी के बड़ा एक मतलब आध्यात्मिक आ मार्मिक एहन टाइप से अभियान एगो चल शुरुआत करें तो वो हमरा से पहले से जुड़ल रहा। तो डॉक्टर साहब डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार हमरा कहल कि विक्रम जी जो आप ऐसा कीजिए जो आप जल पर काम कर रहे हैं एक जल संरक्षण कमला संस्कृति संरक्षण तो एक अब हमारे यहाँ के जल पुरुष जी है डॉक्टर राजेंद्र सिंह एक बार बात करिए कि कुछ आपको आइडिया मिलेगा तो उससे आप और कुछ कर सकते हैं नेपाल में। और ये तो साझा विरासत है कमला तो एक देश का बात नहीं है नेपाल भारत अथवा मिथिला का विरासत है तो ये नेपाल भारत दोनों देश का साझा विरासत है। इस विरासत को कैसे किया जाए अथवा किस तरह से करने से और अच्छा होगा इस पर बात चल रही। तो वही समय में हम आगे डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी से बात के लिए हमारा भेंट घाट में सबसे पहले भेंट घाट वही भेला के बाद में आके डॉक्टर साहब हमारा से अति प्रभावित हो गए डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी जे वो कहल कि जे तोरा मिशन के जे जौर में हम छी। तो उस शुरुआत के प्रथम वार्षिक उत्सव मनबे के लगी डॉक्टर राजेंद्र सिंह जे जल पुरुष ओकरा कहल जाए छै वाटरमैन ऑफ इंडिया आ वो आगे मैक्सेसे अवार्ड ओकरा प्राप्त से नोबेल पुरस्कार के लिए अंतिम अवस्था में वो जे पानी पर काम करे से और तरुण भारत संघ के बहुत बड़ा संस्था है जे राजस्थान जयपुर में है तो वही सब प्रतिनिधित्व करे छे और जन जोडो अभियान ओकर से सेहो छै। और वो बाद में एक नेपाल आबि कऽ हुनकर प्रवचन सुनऽ के लेल लाखों लोग अहाँ के बैसले कमले किनार में और दोनों साइड के सिराहा धनुषा जिला के सारा लोग के बैठा के एक सम्मेलन भेलै बहुत बड़ा सम्मेलन ताहिमे दुनू जिला के सीडीओ एसपी दुनियादारी जते होइ छै प्रशासनिक नेपाल सरकार के सेहो ओकर प्रतिनिधि मंत्री समेत हुए पुगले ओहि अहाँ के प्रदेशो प्रमुख जकरा राज्यपाल कहै छै अपने राज्यपाल सेहो पुगले सबके बीच में डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी के प्रवचन भेलै ओकर अपन बात मिशन अयलै और वो के गेला के कुछ दिन के बाद जे अपना ही के जे स्वीडन में एक विश्व मंच अहाँ के गठन भेल जकर केंद्रीय कार्यालय स्वीडन में राखल जाए ओकर नाम देल गेलै जे विश्व बाढ़ सुखाड़ जन आयोग। फ्लड एंड ड्राफ्ट जे पीपुल्स कमीशन के ओकर नाम भेलै तो वही कमिटी में नेपाल से प्रतिनिधित्व करे के लागि अंतर्राष्ट्रीय सदस्य नेपाल से हम वही कमिटी में हमारा डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी कहलकै जे अहाँ के आवश्यकता है अहाँ के रह पड़ते नेपाल से ओहिमे नेपाल के एगो पूर्व मंत्री जी सेहो रहला लेकिन पूर्व मंत्री जी के और 2 आदमी बाद में हम सब नेपाल से प्रतिनिधित्व करऽ लगलियै। तो वही आयोग में अखिनतो हम सब छियै संगे छियै साथे में छियै और राजेंद्र सिंह जी के हमरा सबके जे व्हाट्सएप ग्रुप सेहो चलै छै तो ओहिमे हम सब साथे में अखिनतो छी काज और के अनुभव आदान प्रदान केना भेल जाए और जे समय में जो उत्खनन के अवैध उत्खनन के जो बड़का मुद्दा जे अयलै ओहि मुद्दा में जो हमरा लड़ऽ पड़ल आगाड़ी बढ़ऽ पड़ल उस समय में आगे डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी भारत सरकार से सेहो बातचीत केलकै जे ई नहि बचतै तो
गंगा जी के जे बात हम सब करै छी नमामि गंगे या गंगा विचार मंच और गंगा जी के सफाई के बात जे करै छी जे गंगा के निर्मलता पवित्रता होबक चाही, तो गंगा जी की सहायक नदियाँ जते छे जो नेपाल से राजेंद्र सिंह जी कहल कि जो नेपाल की जितना भी नदियाँ हैं, जो उत्तर प्रदेश से हो या बिहार से हो या उत्तराखंड से हो या पश्चिम बंगाल से हो, जितना भी नदियाँ, वो सब नदियाँ आकर गंगा में ही मिलती है। और सहायक नदियाँ पर काम नहीं होगा तो गंगा की सफाई की बात बातें में रहेगी। इसलिए इस पर भी कुछ विचार करना होगा। वही समय में जो कमला के कुछ हम सब काम करने चाहिए तय के और अभियान के, कमला बचाओ अभियान के सराहना कर भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और कुछ अन्य संघ संस्था और सब मिलकर जे आगे वो आयोजना कल वही आयोजना में जल प्रहरी के सेहो हमरा उपाधि बहुत धन्यवाद। जे छे लास्ट में बस लास्ट में दू लाइन में कह दियो, आप बहुत हमरा सबके समय भ गेल। ई कहियो जे अहाँके जे छै कमला जतऽ से उत्थान छै महाभारत पर्वत एतऽ से लए कऽ अहाँ जतऽ अंत छै बिहारमे मिथिलामे ओतऽ तक अहाँ भ्रमण करै छियै? हरेक गाँव हरेक गाँव जी इहो करै छी। बहुत धन्यवाद। My dear viewers, you heard a very dynamic youth. In fact, when I met him, I just asked Harivansh Babu, at whose residence I am putting up now. As soon as I met him and I began discussing about Vikramji, I just asked him as to what exactly would be his age. He said to me that he will be just around 40. So Vikram Yadavji is, just 38 years old, but the load of work that he has done that stands to his kitty is something immeasurable, something which is disproportionate to his age, and therefore indeed it is some sort of miracle that with such a short span of time he has done a monumental sort of work for Kamla River. And you heard this dynamic boy, dynamic young man, the way he tried to articulate his innate feelings, his emotional attachment with that of Mother Kamla, with whom he loves to equate Kamla with Ganga, because he says it is his conviction, his belief system that for Mithila, Kamla is equivalent to Ganga. That is what is said to me in the informal conversation, but that is what I am just duplicating now. So it is all the best my dear viewers. I am embarking on this grand mission to execute this book, The Living Legends of Mithila Part 2. This was the first book which I wrote in the year 2017, and second, Living Legends of Mithila Part 2 is very much on the anvil, but of course with some sort of modification, with some sort of greater refinement. Because here in this first series of first edition, I could not portray a good number of people from Mithila community in Nepal. But this time I have made it a point that Janakpur books, my journey starts from Janakpur, and from Janakpur we are going to consider at least 5 to 6 people, maybe 7 also. Because Janakpur is going to be the pivot around which the living legends of Mithila Part 2 is going to revolve. So with this is Vivekananda. I wish Vikramji all the very best, because with short span of time he has done a lot, but he shouldn't be complacent. He should endeavor to achieve more and more in his life. That is the best wish for him from the author of The Living Legends of Mithila Part 2. Thank you, my viewers. Thanks.